कांस्टेंट मोशन का ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट समझिए। ए पार्टिकल साइड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए फिक्स्ड स्मूथ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस ए प्रोजेक्टेड horizontally with velocity √7 ag/2 so that it will leave the sphere at height 3 / 2 above the lowest point, and its subsequent path meets the sphere again at point of projection, that is a sphere, hollow sphere. That is hollow sphere. That is hollow sphere whose center O is the lowest point. Particle starts from lowest point A and PV position P after time t. Reaction angle R and tangential force md2s/dt square, normal force mv square upon rho, velocity weight acting vertically downward, and at point Q particle inside at lowest point of fixed smooth hollow sphere of radius A is the radius of sphere, hollow sphere, projected with velocity √7 ag/2 so that it will leave the sphere at point Q. X, Y, velocity v1, angle that is angle θ1 alpha. Particle leave the sphere at point Q and meets again at the point of projection A. ये इसका फिगर है। अब देखिए, पार्टिकल ऑफ मास m B projected from lowest point A of sphere with velocity √7 ag/2 at point P. Equation of motion md2s/dt square equals to minus mg sin theta mv square upon rho equals to r minus mg cos theta. Here rho इसमें radius of curvature, but in sphere rho equals to a equivalent to radius, s equals to a theta. Arc equals to radius into angle, ds/dt, velocity a d theta/dt, and d square s/dt square equals to equation 1.
ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा मल्टीप्लाइंग बाई 2a d theta upon dt and integrating v square equals to a d theta upon dt whole square 2ag cos theta plus constant at a v equals to root 7 ag upon 2 theta equals to 0 then 7ag upon 2 equals to 2ag plus c1 और c1 equals to 3ag upon 2 v square equals to 2ag cos theta plus 3ag upon 2 equation 2 r equals to m upon a v square plus ag cos theta. Students, R is the reaction of the particle to the surface to the sphere, and from equation 2 R equals to m upon a into v square plus ag cos theta for sphere rho equals to radius a, or R equals to m upon a u square सेवन ए जी अपॉन 2 3ag अपॉन 2 प्लस 3ag cos थीटा. अब स्टूडेंट देखिए ये रिएक्शन है. अब पार्टिकल एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर पार्टिकल लीव हो जाता है, रिएक्शन तो है नहीं अब, और थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए, ये 5 है. 0 इक्वल्स टू m अपॉन ए 3ag cos थीटा 3ag अपॉन 2 प्लस 3ag cos थीटा 1 और cos थीटा 1 इक्वल्स टू माइनस 1/2. अब एल्फा एंगल है ए बी सी डी, ये वर्टिकल डायमीटर ए सी, और क्यू का सी के साथ एंगल क्यू ओ सी एंगल एल्फा. सपोज किया एंगल क्यू ओ सी लेट सपोज एल्फा, और ये एंगल ए ओ क्यू ये थीटा 1 है, तो एल्फा किसके इक्विवेलेंट होगा? एल्फा इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा 1. तो कॉस एल्फा कितना हुआ? कॉस पाई माइनस थीटा 1 और वी कैन से कॉस थीटा 1 माइनस प्लस 1/2. तो कॉस एल्फा की वैल्यू 1/2 है. वेलोसिटी फ्रॉम 4 r इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट Q, r इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू v1 and theta इक्वल्स टू थीटा 1. सपोज पार्टिकल लीव द स्फीयर एट पॉइंट Q विद वेलोसिटी v1. इक्वेशन 4 0 इक्वल्स टू m अपॉन a v1 स्क्वायर प्लस ag cos थीटा 1 और v1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ag cos थीटा 1 हाफ ag cos थीटा 1 इक्वल्स टू माइनस 1/2. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. Particle leave the sphere at point Q. It will meet at the point of projection whose path is projectile, whose equation is y equals to x tan alpha minus gx square upon 2 v1 square cos square alpha, y equals to
एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v1 स्क्वायर हाफ ए जी एंड कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस 4x स्क्वायर अपॉन ए। We have that is equation number 6. कोऑर्डिनेट ऑफ Q, Q के कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज पॉइंट L, QL एंड AL माइनस LA। स्टूडेंट से पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हैं QL, ये L सपोज किया है QL और वर्टिकल में AL होता है, डाउनवर्ड में माइनस LA लेंगे। QL x कितना है, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस अल्फ़ा 1/2 है, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये √3, टेन अल्फ़ा √3 एंड x इक्वल्स टू QL मीन्स OQ साइन अल्फ़ा, OQ A साइन अल्फ़ा ये √3/2 y माइनस LA माइनस LA मीन्स OL प्लस OA, OL ए कॉस अल्फ़ा प्लस ए माइनस ए कॉस अल्फ़ा 1/2 y इक्वल्स टू माइनस LA इक्वल्स टू माइनस 3a/2। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6, x की वैल्यू ये √3/2 और टेन अल्फ़ा √3 है माइनस 4/a और x इसमें कितना है ये √3/2 3/2 माइनस 3 है। y equals to minus 3a/2 that is minus LA. It means that particle meets the sphere again at point of projection. देखिए y की वैल्यू माइनस LA के इक्वल आ गई। एक बार बताते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये इक्वेशंस के मोशन है, स्फीयर के इनसाइड में पार्टिकल मूव करता है तो टेंशन के प्लेस पर रिएक्शन होता है। पिछले आर्टिकल के तरीका ना वेलोसिटी इस बार √7/2 AG है, इससे हम v² फाइंड आउट कर लेंगे और ये v² की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 2 से और फाइंड आउट कीजिए, v² की वैल्यू पुट कीजिए, पार्टिकल क्यू पॉइंट पर लीव हो जाता है, यहाँ पर रिएक्शन 0 और एंगल हो गया θ1, cos θ1 फाइंड आउट करेंगे और अल्फ़ा कितना है π-θ1 के इक्वल है। कॉस में वैल्यू फाइंड आउट करें, cos अल्फ़ा 1/2 और ये क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी v1, उसके लिए फिर अगेन इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करना है, r0 v1 θ1, इससे वेलोसिटी इतना है, इतनी वेलोसिटी से पार्टिकल क्यू पॉइंट से लीव करेगा। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसमें v1² की वैल्यू और cos² अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। अब x कितना है, a से q की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना QL है, और QL इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल
एल ओ क्यू में, तो ये होगा एल क्यू एल इक्वल टू ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा, साइन अल्फा इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करें। और उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस ये है, देखिए ये वाई है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये तो ए है, ये कितना इस ट्रायंगल में, ए कॉस अल्फा, इनकी वैल्यू पुट करें और इसमें शिफ्ट करने के बाद इक्वेशन में आपको y की वैल्यू -3a/2 होगी, ये ही एल ए है। तो इट मीन्स दैट इससे प्रूफ होता है तो पार्टिकल ए पॉइंट पर स्ट्रक करेगा।